Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel, Chemistry with Adil. Hope you are fine. As we know, in this pandemic, we should supposed to pray Almighty Allah to save us from this pandemic, and we should supposed to follow the SOPs, maintain the social distancing, wearing the masks, and try to remain busy with your study. And also in this holy month of Ramadan, recite the Quran, and don't listen the much news about the COVID-19 as it brings the psychological imbalance in our body. So, as we know, we have completed the part 2 regarding the reagents. Today it is part 3 about the reducing agent lithium aluminum hydride. So let's begin our video. So the objective of today's lecture that is objective जो रहेगा आज के लेक्चर का that is reduction products of different functional groups. Reduction products of different functional groups when reacted with LiAlH4, lithium aluminum hydride. So this is our aim. As we know, in the part first and part second we have completed the mechanism. So the same mechanism operates for every functional group, little bit difference in case of amines. So let us see what are the different reduction products when we react those functional groups with lithium aluminum hydride. So let us start from the aldehyde functional group. So यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे रहेगा functional groups, और यहाँ पे रिडक्शन प्रोडक्ट्स हम शो करेंगे. रिडक्शन प्रोडक्ट्स. तो हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है, हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल R single bond CHO. This is known as aldehyde. It is the general formula of aldehyde, and we will get the reduction product when we react with LiAlH4. And first step and in second step workup, that is the hydrolysis H2O. It remains the same for every functional group, and we get here the primary alcohol, that is R single bond CH2OH. So this is known as primary alcohol. Getting? तो इसका मैकेनिज्म हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में दिखाया है. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप पहले वो पार्ट्स देखिए, फिर आप यहाँ पे these are the just results or reduction products of different functional groups. तो हम दूसरा देखेंगे. अगर हमारे पास कीटोन होगा, फॉर एग्जांपल द जनरल फार्मूला R single bond C R dash double bond O. This is known as ketone. This one is known as aldehyde, and this is known as ketone. It is same, reagent सेम रहेगा. तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा that is CHOH. तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे हमें मिल गया. ठीक है. So this is the reduction product when we reduce the ketone with lithium aluminum hydride. Similarly, move on, we take the example of this carboxylic acid. The general formula is R single bond C double bond O H, RCOH. तो यहाँ पे सेम रहेगा ये. तो यहाँ पे भी हमें अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज
R single bond CH2OH. Getting? Now move on. The fourth one. If we take esters, that is R single bond C double bond O, O R dash. This is the general formula of ester, and this one is carboxylic acid. तो यहाँ पे भी reagent सेम रहेगा जो ऊपर हमने लिखा है. तो यहाँ पे हमें दो अल्कोहल्स यहाँ पे मिलेंगे, that is R single bond CH2OH plus R dash OH. Now depending on this R, it may be primary, secondary or tertiary है. ये R dash क्या होगा? अगर हम R dash को कुछ किसी ऐसे ग्रुप से रिप्लेस करेंगे जो सेकेंडरी इन नेचर होगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. तो सिमिलरली है, लेकिन ये वाला पहला ये तो प्राइमरी अल्कोहल ही रहेगा. So this is the reduction product of esters. So move on. Now if we talk about the another functional group, that is amide. The general formula is R single bond C double bond O NH2. This is known as acid amide. This is known as acid amide. तो ये जो acid amide है, जब इसको भी हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, this LiAlH4 and वर्क अप हाइड्रोलिसिस है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें मिलता है amide, that is R single bond CH2NH2. This is known as amide. अमाइन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो यहाँ पे अमाइन हमें मिलेगा. तो लेकिन ये जो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अगर यही रिएक्शन यहाँ पे अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अबो लिटिल बिट 35 डिग्री सेल्सियस, तो हमें यहाँ पे अमाइन मिलेगा. बट इफ द रिएक्शन सेम रिएक्शन, यही मैं रिएक्शन लिखूं RC डबल बॉन्ड O NH2 एसिड अमाइड, यहाँ पे बस मैं ये चेंज करूं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बस -10 डिग्री सेल्सियस है. यहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर को मैंने यहाँ कम किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट है. यहाँ पे हमें R सिंगल बॉन्ड CHO है, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिलेगा. और कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे. लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. रिमेंबर दिस lithium aluminum hydride है, it reduces almost all the functional groups. If we move on, अगर हम नाइट्राइल्स की बात करेंगे, the general formula is R single bond C triple bond N. This is the nitrile CN, नाइट्राइल है. साइनाइड भी बोल सकते हैं इसको, CN ग्रुप. सो ये नाइट्रल है. तो यहाँ पे भी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हम, क्योंकि हमारा जो रिएजेंट है वो सेम रहेगा, तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही पढ़ रहे हैं, ये रिड्यूस करता है एवरी फंक्शनल ग्रुप को. तो यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2. तो यहाँ पे अमाइन हमें मिलेगा. सिमिलरली इफ वी टेक दिस इज, इसको हम नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल. दिस इज नोन एज एसिड अमाइड, एसिड अमाइड. तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल R सिंगल बॉन्ड NO2, नाइट्रो कंपाउंड्स अगर हम यहाँ पे लेंगे, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में. यहाँ पे है तो सेम रिएक्शन है, इट विल गिव अस R NH2, दैट इज R सिंगल बॉन्ड NH2. ये अमाइन हमें देता है. बट रिमेंबर यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम दिस इज एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स. इफ वी टेक द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल AR, इट इज एराइल benzene ring with NO2,
if we take 2 times, the reaction is same. The difference is it is aromatic nitro compounds, aryl nitro compounds, aryl nitro compounds. तो यहाँ पे हमें एजो कंपाउंड्स मिलेगा, डायजोबेंजीन, इट इज Ar सिंगल बॉन्ड, दिस N double bond NAR, this is known as diazo compound. एजो कंपाउंड जनरली हम बोलते हैं इसको एजो कंपाउंड्स. तो ये AR, हाँ, इट इज बेंजीन रिंग. सो यहाँ पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं अगर हम एराइल नाइट्रोबेंजीन लेंगे. तो जितने भी हमारे पास जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स है वो हमने सभी देखे हैं. अब थोड़े से रह गए हैं. रिमेंबर द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करता है. दिस वन इज इंपॉर्टेंट है. सो वहां से पहले हम अगर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे पास यहाँ पे आपको नोट ये बात याद रखनी है कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, isolated double bonds cannot be reduced by lithium aluminum hydride. Isolated double bonds reduce नहीं होते हैं. बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड. ये रिड्यूस एग्जांपल हम देखेंगे. अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, ये पीएच है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एल्डिहाइड है CHO, तो इसको हम LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड दिस इज ईथर एक्ट्स एज सॉल्वेंट. तो यहाँ पे ये रिड्यूस करता है. यहाँ पे हमें मिलेगा पीएच CH2OH, pH CH2OH, यहाँ पे हमें ये मिलेगा. बट रिमेंबर टेम्परेचर डिपेंडेंट ये रिएक्शन है. यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हुआ है और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ये प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ रिड्यूस हुआ है, ये याद रखना है. लेकिन ये तभी रिड्यूस होगा जब टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस होगा. अगर हमारे पास यही रिएक्शन होगी, पीएच यहाँ पे मैं एल्डिहाइड लगाऊं और सेम रिएक्शन यहाँ पे LiAlH4 और एस्टर, तो यहाँ पे हमें जस्ट यहाँ पे अबव 0 डिग्री टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे वो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है, माइनस में है, तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फिर रिड्यूस नहीं होगा. यहाँ पे बस एल्डिहाइड रिड्यूस होगा और ये डबल बॉन्ड जो है ये रिड्यूस नहीं होगा व्हेन द टेम्परेचर इज माइनस बिलो 0, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस. ये आप याद रखिएगा. एंड दिस इज अबव द रूम टेम्परेचर है. तो सो इन दैट कंटेक्स्ट इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो पहले तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते, लेकिन आइसोलेटेड अगर कंजुगेटेड होंगे, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड वो ये इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यहाँ पे भी है ये कंजुगेशन में है. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसका डबल बॉन्ड है. इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे अगर मैं वो लिखूं C डबल बॉन्ड OH, सो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन में है. तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कैन बी रिड्यूस्ड, बट स्टिल द पॉइंट इज द टेम्परेचर फैक्टर इज इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है. मूव ऑन. अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड्स होंगे.
फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड Cl है, कोई भी हेलोजन है, Br आयोडीन है, तो यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेम रिएक्शन है LiAlH4 और दूसरा जो है हमारे पास है वर्क कप, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा CH4 मीथेन मिलेगा। सो हाइड्रोकार्बन है तो अल्काइल हैलाइड है, पर रिमेंबर है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद, दिस इज SN2, SN इट प्रोसीड्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म, वो आपने पढ़ा होगा। तो ये अल्काइल हैलाइड से हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा रह गए हैं, जितने भी हमें जो कॉमनली फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमने सभी देखे हैं, कहाँ पे क्या क्या बन रहा है। और जो दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि इनके साथ एसिड अमाइड्स, हमें वहां पे टेम्परेचर ने हमें दो प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो प्रोडक्ट्स मिले, और अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वहां पे भी हमें दो। एंड जस्ट नाउ रिमेंबर, अगर हमारे पास इपॉक्साइड रिंग होगी, अगर हमारे पास इपॉक्साइड रिंग होगी, दिस इज इपॉक्साइड रिंग, इफ इट इज अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा R, दिस इज अनसिमेट्रिकल है, तो इस अनसिमेट्रिकल, दिस इज नोन एज इपॉक्साइड रिंग है, जब इसको हम रिड्यूस करेंगे LiAlH4 से और फिर वर्क कप H2, तो यहाँ पे अटैक इस पोजीशन पे अटैक होगा। तो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे जो H नेगेटिव निकलेगा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, तो फिर ये हाइड्रोलिसिस में प्रोटॉन लेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस, यहाँ पे हमें दिस इज R, दिस इज OH, ठीक है। तो यहाँ पे जो H मैं दिखा सकता हूँ, तो अल्कोहल हमें यहाँ पे मिला है, यानी कि यहाँ H ने अटैक किया, तो दिस इज अल्कोहल व्हेन इपॉक्साइड रिंग इज रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एंड द मोर ऑन द ऑलमोस्ट just two compounds, then we will finish this very topic. So this is known as propargylic alcohol, or single bond C, triple bond C, single bond CH2OH। यूजुअली डबल बॉन्ड्स को हमने देखा कि रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे पास एक स्पेशल किस्म का ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज नोन एज प्रोपार्जिलिक अल्कोहल, प्रोपार्जिलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे ये जब रिएक्ट होता है LiAlH4 के साथ, तो हमें क्या यहाँ पे ट्रांस अल्कीन मिलता है, दैट इज R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH2OH, जो इसके साथ है ही ये वाला ग्रुप, ये तो सेम रहेगा यहाँ पे CH2OH, लेकिन यहाँ पे H और H। तो जब दो ग्रुप्स अपोज्ड में होंगे, this type of alkene, it is known as trans alkene, trans alkene. So this is the another reduction product when we react propargylic alcohol with lithium aluminum hydride, and the last one is almost last but one, अगर हमारे पास ये साइक्लिक कीटून अगर हमारे पास होगा, याद रखिएगा साइक्लिक कीटून C डबल बॉन्ड O, तो इट्स प्लेनर फॉर्म, इट इज स्टेबल फॉर्म इज चेयर फॉर्म। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज इट्स चेयर फॉर्म। सो यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं। नाउ इट इज सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे कहीं भी अटैक होगा, पर अगर यहाँ पे मैं पोजिशन फर्स्ट पे कोई सा ग्रुप लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल इट्स CH3, यहाँ पे CH3 है, 1 2 1 2, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CH3 है, ठीक है। तो यहाँ इस जगह पे हम दिखा सकते हैं। तो रिमेंबर कि हमेशा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगी वहीं पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इससे रिएक्ट करेगा, LiAlH4 और वर्क। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा। यहाँ पे हमें दिस,
AOH है और यहाँ पे H। So it is just for the symbol of messenger, as you know. So वहाँ पे आप देखिएगा कि cyclic this ketone, its planar form, its stable form is this. This is known as chair form. So almost we have completed the last remaining here. If we have a cyclic ester, if we have a cyclic ester, that is the last compound. अगर हमारे पास साइक्लिक एस्टर होगा तो दिस इज द लास्ट वन, साइक्लिक एस्टर एक एग्जाम्पल इसकी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये मिलेगा हमें साइक्लिक एस्टर की है। यहाँ थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह दिखाएंगे, आप थोड़ा यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज साइक्लिक एस्टर, दिस इज नोन एज साइक्लिक एस्टर एंड साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टून्स। तो यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज R डैश, दिस इज R डबल डैश है, सो दिस इज डाउन द ग्रुप, दिस इज अबो। तो यहाँ पे हमें LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, सेकंड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमें डायोल मिलेगा, क्या मिलेगा? डायोल। यहाँ पे अटैक करेगा ये, इसमें H नेगेटिव मिलेगा हमें, यहाँ पे H नेगेटिव, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ठीक है, ये री-रेजोनेट हो जाएगा, वापस आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर रिवर्क आपके वाटर में से H मिलेगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज डायोल, दैट इज डायोल। डायोल, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? CH2OH और यहाँ पे ऐसा ही रहेगा R डैश और यहाँ पे OH और यहाँ पे R डबल डैश। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डाउन द ग्रुप में से ये ग्रुप जो लगा है, यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप है। दिस इज नोन एज रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन इन configuration. So with that we completed almost all the functional groups. उसके reduction products हमने देखे हैं, तो hope आपने इसको एंजॉय किया होगा। and subscribe my channel chemistry with Adil, AEDI Adil, share it and don't forget to hit the bell icon for the future notifications, upcoming videos, and thank you for your support which I see in the comments. Thank you for watching.